welcome back everyone. So here we are discussing the new topic, new chapter of biology, that is introduction to biochemistry. First of all, what is biochemistry? Why could not I use my pen here? A minute. Yes. First of all, we understand what is biochemistry. Biochemistry क्या है? Biochemistry is basically the branch of biology which deal with the study of chemicals in addition with life living organisms के साथ जो हो रहे हैं we do call them biochemistry. For example, the chemical reactions taking part in your body, inside your body, are known as chemicals, biochemicals, right? Inside your cell we have chemical, so that all are known as biochemicals here, right? I hope the what is biochemistry is clear to you. Biochemistry, let me read out the definition here. The branch of biology which explains biochemical basis of life is called biochemistry. बहुत आसान है. Biochemistry is something that is happening inside your body, the chemical reaction taking inside your body. When we compare, yeah, all things taking inside your body, जब हम इसको जोड़ दें, the chemistry of living organisms is known as biochemistry. ठीक है. So it is very important part of with some reason. Okay, first of all, biochemistry, what is the need of it? So the first point here is this point. ठीक है. What is it? ये पॉइंट हमें बोलता है कि all the processes taking inside your body, हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं आर ड्यू टू बायोकेमिस्ट्री. अगर ये केमिकल ना हो तो वी कुड नॉट हमारा मेटाबॉलिज्म ना हो. तो फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेशली डीएनए फॉर एंजाइम्स, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी न्यूक्लियस से पावर हाउस न्यूक्लियस, व्हाट इज़ न्यूक्लियस? द मेन पार्ट ऑफ सेल, द ब्रेन ऑफ सेल. यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल एक डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, तो वो कहाँ से पता? न्यूक्लियस मैसेज देगा कि डीएनए रेप्लिकेट होगा, तभी तो होगा. तो बेसिकली द मैसेजेस दैट आर गोइंग, द रिवॉल्विंग इनसाइड अ बॉडी आर ड्यू टू केमिकल्स. फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव टच्ड अ हॉट ऑब्जेक्ट, तो ब्रेन से मैसेज आएगा कि यू हैव टच्ड अ हॉट ऑब्जेक्ट, रिमूव योर हैंड. आई नो वो स्पाइनल कॉर्ड से भी होता है, बट ऑफ कोर्स अगर आपको थोड़ा सा गर्म कोई चीज़ है तो यू नीड टू थिंक. तो वो कैसे आता है? वो बेसिकली केमिकल्स की वजह से ही आता है. तो all the things included here are known as biochemistry. I hope this point is clear. I hope, right? ये वाला point is clear. Second, for example, सब कुछ मैंने बात किया कि we have chemicals in a body. हमारा cell is also composed of chemicals, right? For example, chemical composition की बात करें अगर सेल की, तो उसमें 90 to 80% वाटर होता है, और दूसरे मॉलिक्यूल्स लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड, सब कुछ होता है, राइट? ऑयल, फैट्स, कुछ भी हो सकता है. तो अगर तो इनके बीच में फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी है, इसमें कोई भी रिएक्शन, समथिंग बहुत ज़्यादा हो गया है और कोई चीज़ कम हो गई है, तो ऑफकोर्स एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी. कोई भी केमिकल ज़्यादा हो गया है, कोई भी कंपोजिशन इज़ डिस्टर्ब इन द सेल, so of course there will be some problem inside the body, right? A kind of abnormality. To study that abnormality so that we can create protection against it. For example, अगर we have some disorder in the cell, तो उस सेल को सही करने के लिए, उस डिज़ीज़ को ओवरकम करने के लिए we need to have some medicines, right? So when we study these all things, then we can go through the abnormalities and we can go through the medicines. तो बेसिकली बायोकेमिस्ट्री हमें ये देती है कि हम स्टडी कर सकें केमिकल्स को. ठीक है. आई होप दीज 2 पॉइंट्स आर क्लियर. थर्ड में लाइक आफ्टर थर्ड आई रिपीट कि मैंने क्या बोला. बाकी थर्ड पॉइंट इज़ द रिसेंट कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्नोलॉजी. अगर हम इस चीज़ को कनेक्ट कर दें टेक्नोलॉजी से, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल नाउ वी कैन control the growth of cell, right? Why everything is why everything is happening inside a body. कोई function हो रहा है, क्यों हो रहा है? कोई नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा? If we can control, so how? If we cannot, so why? So everything we have connected this to technology, as nowadays everything is turning into technology. So this connection between the human body for the chemicals and the technology has made us to understand all this. So this all is known as biochemistry, and this is why biochemistry is important.
सो इन 3 पॉइंट का मतलब बेसिकली ये था. नाउ लेट मी गिव यू अ कंक्लूजन. बायोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है जो डील करती है केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं. अब बायोकेमिस्ट्री ज़रूरी क्यों है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो बायोकेमिस्ट्री सबसे पहले तो ज़रूरी इसलिए क्योंकि बायोकेमिस्ट्री हमारे पास हमें प्रोवाइड करती है मैसेज जिसको ट्रांसपोर्ट करना. हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोसेसेस जो हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं. केमिकल्स जो हैं वो आगे पीछे हो रहे हैं, मैसेजेस हो रहे हैं, जा रहे हैं, तभी हो रहा है. सेकेंड पॉइंट इज़ इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन. एबनॉर्मेलिटी आ गई है कोई सेल में, तो सेल को सही करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल वो हमने एबनॉर्मेलिटी पढ़ी केमिकल रिएक्शन के थ्रू, अब उसके लिए हम मेडिसिन बना सकते हैं. दिस इज़ वाई बायोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट. थर्ड पॉइंट हियर इज़ कि एवरीथिंग इज़ हैपनिंग इनसाइड अ बॉडी. इफ़ वी हैव कनेक्टेड दिस टू टेक्नोलॉजी, तो हम सब कुछ आज ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड इन द ह्यूमन हैंड्स. मतलब हम बहुत चीज़ें जो पहले नहीं कर सकते थे, वी कैन डू इट नाउ बाय द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. सो येस, दिस इज़ ऑल द कनेक्शन बिटवीन दिस इज़ द कनेक्शन बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री. ठीक है, एज वी नो दैट नाउ आई एम रीडिंग आउट द पैराग्राफ. well, इसमें इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है. इट इज़ ओनली सीइंग कि बायोकेमिस्ट्री इसलिए ज़रूरी है कि हमें केमिकल रिएक्शंस पढ़ने होते हैं, प्रोसेसेस पढ़ने होते हैं, एंड ऑल ऑफ इट, राइट. अब नाउ वी शुड कम ऑन द सेकेंड टॉपिक, दैट इज़ केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल. केमिकल, तो वी नो, वी हैव, एवरी वन ऑफ यू हैव स्टडीड इन केमिस्ट्री. केमिकल कंपोजिशन किससे बना हुआ है? सेल. सो ओके, सो इफ़ यू टॉक अबाउट ह्यूमन सेल, तो ह्यूमन सेल बेसिकली बना हुआ होता है प्रोटोप्लाज्म से. आई नो प्रोटोप्लाज्म में सब ऑर्गेनेल्स आ जाते हैं. व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस. व्हाट आई सेड, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म. ठीक है. नाउ अगर हम बात करें, लेट मी रेज दिस, बहुत कम हो जाएगा. सो इफ़ यू टॉक अबाउट प्रोटोप्लाज्म, हमने बोला प्रोटोप्लाज्म से बना हुआ है सेल, बट हम बोलते हैं लाइक हियर इट इज़ मेंशन कि 70 to 90% प्रोटोप्लाज्म में वाटर होता है. इट इज़ रिटन हियर कि 70 to 90% प्रोटोप्लाज्म में वाटर होता है, राइट. बट ऑफकोर्स ये हमारे पास एस्टिमेटेड अमाउंट है. वी एक्चुअली यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, द एक्चुअल केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज़ स्टिल अननोन परफेक्टली. मतलब ये जो हमने बोला है कि 70 to 90% है, ये बात बिल्कुल ठीक भी है, मत एक अप्रॉक्सीमेट है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है. अच्छा, हमने बोला ये 70 to 90% वाटर से बना हुआ है. अगर ये सेल है, फॉर एग्जांपल ये सेल है और ये इसमें हमारे पास प्रोटोप्लाज्म है, सॉरी, ठीक है, ये प्रोटोप्लाज्म है. अगर हमने बोला कि ये 80 to 90% तो वाटर से बना हुआ होता है, अगर हम इसका वाटर बाहर निकाल दें तो इसके अंदर जो ऑर्गेनल्स या फिर जो भी होगा ना, जो भी बचेगा, उसको हम बोलेंगे वो क्या है, दैट इज़ कॉल्ड ड्राई वेट ऑफ सेल. व्हाट इज़ ड्राई वेट? जब हम वाटर में से सेल में से वाटर को निकाल दें, लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव 70 to 90% वाटर, इफ़ वी टेक इट आउट फ्रॉम द सेल, तो जो बाकी मास बचेगा ना, वेट बचेगा, उसको हम बोलेंगे दैट इज़ कॉल्ड ड्राई वेट. ठीक है. कंसिस्ट ऑफ मैनी लॉन्ग चेन्स कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स. अब व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स? बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली बायो मीन लाइफ, मॉलिक्यूल्स जिससे लाइफ चल रही है, मतलब ह्यूमन बॉडी चल रही है. तो बेसिकली दे आर 6 मेन बायोमोलिक्यूल्स जिनसे पूरी बायोकेमिस्ट्री या फिर और उससे बायोमोलिक्यूल जो हैं कंपोज होते हैं. बट जो मेन मोटिव, मतलब जो है ना मेन वाले हैं, वो 6 हैं. दैट इज़ ये मैं लिख देती हूँ, CHNOSP. व्हाट डज दिस मीन? दिस आर 6. इनको याद कर लें. इट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द MCQ पॉइंट ऑफ व्यू. कोई भी आपसे पूछा जा सकता है. कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस. These 6 are the main constituent of biomolecules. इन 6 से मिलके ही बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं. फर्दर ऑन दे आर डिवाइडेड इनटू अदर टाइप्स, बट जो मेन वाले हैं ना वो ये हैं. आई एम रिमूविंग इट क्योंकि बहुत गंद हो गया. ठीक है. नाउ लेट्स मूव हियर. हाउ कुड आई चेंज द स्लाइड? अच्छा, 1 मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट. ठीक है. एवरीथिंग, आई होप दिस इज़ क्लियर.
ओके एवरीवन, आई डोंट नो व्हाई कुड नॉट आई फाइंड द पेन हियर, मुझे नहीं मिल रहा है. Okay, leave. Let's do it without the pen. I can explain it as well. ठीक है. Now we are talking about the fundamental type of biomolecules. हमने no, the main point is remaining here. They form approximately 98% of biomolecules. The CHNOSP that we discussed, carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, sulfur and phosphorus, they make up 98% of biomolecules. ठीक है. This is the very main point. Do memorize it for MCQs. Now, what are the fundamental type of molecules, biomolecules? So we have studied biomolecules that make up the whole biomolecules. मतलब वो जो main constituent है ना, वो वही है. Now they are divided into this: carbohydrate, lipid, nucleic acid, proteins and conjugated lipids molecules. Now what are carbohydrate? Carbohydrate basically polysaccharides है. Now what are polysaccharides? Polysaccharides are basically combined sugar when sugars like, पहले समझते हैं कि मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है कार्बोहाइड्रेट का. दिस इज मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड्स, राइट. नाउ व्हाट आर मोनो? मोनो मीन एक, सेक्राइड मीन शुगर. तो एक शुगर जब बहुत सारे लाइक आई मीन व्हेन मल्टीपल मोनोसेक्राइड्स कंबाइंड टुगेदर दे मेक अप polysaccharide. So these polysaccharide are known as carbohydrate. And carbohydrate contain which kind of bond? It contain glycosidic bond or glycosidic linkage. These are very important. You need to learn them because in the first chapter I guess these are the very important topics that you should learn. Now we have discussed carbohydrate. Now protein. Protein are basically long chains of amino acid. I hope you have studied this in metric as well as I do in chemistry. So प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन आर बेसिकली द लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स. जब अमाइनो एसिड की बड़ी बड़ी चेन्स मिलती हैं, सो दे व्हाट दे मेक अप अमाइनो एसिड. एंड व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड इज बिटवीन देम? सो दे कंटेन पेप्टाइड लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड. नाउ इफ आई टॉक अबाउट लिपिड, थर्ड जो है वो है लिपिड. लिपिड इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू थ्री: फैट्स एंड ऑयल, फॉस्फोलिपिड एंड व्हाट इज थर्ड नेम? टर्पिनॉइड्स. नाउ फैट्स और ऑयल्स किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं फैटी एसिड. ये बने फैट्स और ऑयल्स किससे बने होते हैं? ये बने हुए होते हैं फैटी एसिड से और हमारे पास ग्लिसरीन से, ग्लिसरॉल से. बात करें फैटी एसिड, फॉस्फोलिपिड. तो फॉस्फोलिपिड किससे बने होते हैं? ये हमने पढ़ा है उसमें. मे बी यू गाइज विल स्टडी दिस लेटर ऑन, अगर कोई और देख रहा है तो, बिकॉज आई हैव स्टडीड दैट. तो फॉस्फेट हेड और फैटी एसिड टेल ये मिलते हैं तो हमारे पास बनता है फॉस्फोलिपिड. इसके बीच में कौन सी बॉन्ड होती है? इसमें ईस्टर बॉन्ड होती है और कार्बन टू कार्बन बॉन्ड होती है. बात करें फैट ऑयल में तो उसमें होती है ईस्टर बॉन्ड. और ट्रिपनॉइड्स, ट्रिपनॉइड्स किससे बने हुए होते हैं? ट्रिपनॉइड्स बेसिकली बने हुए होते हैं हमारे पास आइसोप्रीनॉइड्स. जब आइसोप्रीनॉइड्स मिलते हैं तो क्या बनता है? ट्रिपनॉइड्स. इनके बीच में कौन सी बॉन्ड होती है? इनके बीच में होती है कार्बन टू कार्बन बॉन्ड या कार्बन टू कार्बन लिंकेज. हमने अभी तीन डिस्कस किए. हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड. अब न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड बेसिकली न्यूक्लिक मीन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है आरएनए और डीएनए. आई होप सबने पढ़ा हुआ होगा कि व्हाट इज आरएनए एंड व्हाट इज डीएनए. आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड. डीएनए आरएनए बेसिकली हम इसको पढ़ेंगे आई गेस माइटोसिस, मेयोसिस या इन सब में, वहाँ पे ज़्यादा काम आता है. ठीक है. So what they are made up of, the RNA and DNA are make up of. अगर बात करें DNA तो DNA बेसिकली बना हुआ होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड. और अगर बात करें RNA की तो RNA बना हुआ होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड. RNA और DNA जब ये टाइड मिलते हैं तो हमें क्या बनता है? एसिड बनता है. टाइड मतलब कि फॉर एग्जांपल DNA तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड. जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे तो हमें न्यूक्लिक एसिड मिलेगा. अब बात करें इनके बीच में बॉन्ड की तो इनके बीच में बॉन्ड होती है फॉस्फो ईस्टर लिंकेज. फॉस्फो ईस्टर लिंकेज, यू लर्न एज वेल, आई लर्न एज वेल. फॉस्फो ईस्टर लिंकेज. ठीक है. अब बात करें कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स. ये जो है, अब कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बेसिकली बहुत सारे होते हैं और इनमें बहुत सारी बॉन्ड्स होती हैं.
तो ये डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। नाउ लास्ट पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि ये कंपोजिशन दी हुई है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। यू मस्ट 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 लर्न दिस, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एनिमल याद कर लें तो यू विल डेफिनेटली नो बैक्टीरिया। देखिए इसमें बता रहा है कि 40% 70% वाटर है, आई एम टॉकिंग अबाउट मेमेलियन सेल्स। 70% सेल है, 18% प्रोटीन है, लिपिड 4% है, लिपिड 4 है, 3 है, DNA 0.25, 1.10, अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल अबाउट बायोकेमिस्ट्री। हमने क्या क्या पढ़ा? Biochemistry, its definition, what is importance, composition of cell, fundamental types of biomolecules. Make sure you are learning it, memorizing it. So yeah, bye bye. And in the next topic, we'll be discussing about the synthesis and breakdown of macromolecules.